And now talking about the last tips. So the first thing that you need to read is the NCERT. The second thing is the summary, and the third thing is the scientist वाला thing जो lesson के पहले या unit के पहले दिया रहता है. Hello guys, this is Shravani Sameer Patil, and as I promised you all that I will make a video on NEET 2026, each and every subject with a detailed strategy. So I am here with the first subject, that is biology. So welcome to my channel, and I hope you all have subscribed to my channel if you saw this short of mine. Yes, so without any further ado, let's just start. So as you have clicked on this video, we all know that you are aiming for NEET 2026 exam and you are going to ace in it for sure if you follow this strategy. So let's start with the video without any further ado. Biology strategy for NEET 2026. Yes, so firstly I need to tell you all, I need to rather inform you all that you should have both NCERT textbooks. That is the new edition, Biology NCERT new edition of both class 11th and 12th. Yes, if you have old edition, no problem, but you should purchase new edition also. Yes, that's my advice to all of you out there watching this video, that you should have both the edition. Especially the new edition is important because this is a trend these years. Each and every year NCERT book is being updated, so each new edition each year contains some differences compared to the old NCERT. So if you are having old NCERT, no problem, but I would suggest you should take new edition too. So the first step with which I would like to start is the coaching. Whichever coaching you are going, whether it be offline or online, make sure you're going there for lectures and not making notes. Okay, they will teach you from their modules or their notes. So two types of coaching can occur. First is the intermediate, which you will take in the big coachings like Ellen, Akash or any other, etc. Second is with school students, going to school and then going to coachings. It can be Ellen, Akash or people studying online from PW or any other respective batches. Okay, so you are going there, and especially for biology I'm talking today, right? So when you go there, they will teach you from their module or their notes. I would suggest not to make notes. I would suggest it that you should not make notes. Rather, you should listen to the lecture carefully, thoroughly, and then come home and read your NCERT. Making notes would be a complete wrong decision, because if you are making notes and then coming home and revising them, it would be of no use, because in NEET exam only NCERT is preferred. NCERT and only NCERT you should read. Okay, so if you are going to school, ma'am gives you school notes, no need to read them. You have to make them for the internal marks, okay, but no need to read them. You should read and rather study from NCERT only. If you are going in any big coaching or you're doing it online, they are telling you to make notes, no need to make notes. You can make tables, okay, but no need to make notes or no need to come home. You should always follow your NCERT reading only. Make sure when you are reading your NCERT first time and the second time, you read each and every word thoroughly. So you came home from the coaching, you read the NCERT. The next step would be question practice. You can follow the books of your modules for question practice, not for reading or theory purpose, just for question practice. You can follow the module books. If you don't have books, you can purchase books. I would suggest you book. First is the PYQ. This is very mandatory. Each and every person should have it. Second is the NCERT fingertips. If you don't have NCERT fingertips, no problem. I am going to upload each and every chapter per day one chapter on my Telegram channel. So make sure you join the Telegram channel. This is my Telegram channel. I will attach a link in the description. Okay, so make sure and join it. So that was all about the academic thing. Now coming up to revision. So if you talk about revision, then you have to at least revise 7 to 8 times before going to appear NEET 2026. How should you revise so much time? I will tell you all the detailed plan. Okay, so leaving July, because hardly 10 to 15 days are left, let's start from August. So you have August, September, October, November, December. Till December you should complete your syllabus once, right? How should you complete? I'll tell you all.
Okay, you saw the lecture or you came back home from the lecture. I took both the criterias. First one was the online and second one was the offline. You saw the lecture, came home, you read the NCERT. We have already discussed it. Suppose this thing will take 2 days, or you can say 1 day also. Okay, in 1 day 1 chapter is completed. In big coachings they take like 3 days to complete 1 chapter, but with the time we have currently, I guess if you are not following the coaching, you will follow yourself. You will make a detailed plan by seeing this video. So according to my plan, I am giving you 2 days for that 1 chapter, or just you can complete it 3 days. I think 2 days are enough. See first lecture today and second lecture tomorrow. Okay, 3 days will also be okay according to you. So you saw the lecture and then you went to read NCERT for that particular thing which you studied in the lecture. उतनी ही NCERT तुमको पढ़नी है, ठीक है। एक दिन का तुम्हारा बायोलॉजी का चीज़ खत्म हो गया। अब नेक्स्ट डे बायोलॉजी तुम बाकी का बचा हुआ लेक्चर देखोगे और फिर NCERT उसकी पढ़ोगे। थर्ड डे क्या करोगे तुम? क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, जो मैंने बुक्स बताई है उसकी। PYQ तुम्हें करना ही है, या फिर वो NCERT फिंगर ट्रिप ले लो मेरे टेलीग्राम से, या फिर मॉड्यूल का ले लो, ठीक है। वो तुम्हें चीज़ लेनी है, उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, तुम्हें देख देख के करना है। तुम्हें आएगा नहीं, बस तुम्हें पैटर्न समझ लेना है और फिर तुम्हें करते जाना है, ठीक है। तुम NCERT बीच बीच में खोल सकते हो, क्वेश्चन तुम्हें देख देख के करना है, ठीक है। नेक्स्ट डे, अब थर्ड डे हो गया, अब आते हैं फोर्थ डे पे। अब तुमने 2 बार NCERT रीड कर लिए, एक लेक्चर कंप्लीट होते ही, सेकंड क्वेश्चन देख देख के करे तभी। जो तुम्हें रॉन्ग लगे वो तुमने चीज़ें पढ़ी NCERT से, तो तुम्हारा दिमाग पकड़ के रखेगा। अब थर्ड टाइम तुम्हें फाइनल करना है, बस एक बार सब NCERT पढ़ लेनी है, एक नोटबुक बना लेनी है जिसमें पर पेज 1 चैप्टर होगा। मतलब पर पेज तुम उस चैप्टर की छोटी छोटी चीज़ें लिखोगे, जैसे साइंटिस्ट का नेम, या फिर कोई टेबल जो हार्ड है, रट्टा मारने लायक है, या फिर कुछ चीज़ जो रट्टा मारने के लिए। बट मेक श्योर तुम्हारे टोटल 35 चैप्टर्स है, तुम्हारे 35 ही पेज बनने चाहिए। एक पेज से ज़्यादा पेज मत बढ़ाओ, वरना पर चैप्टर 5-5 पेज बन जाएंगे अगर तुम थोड़ा और विच इज़ इंपॉर्टेंट, दैट ओनली यू शुड राइट, नॉट एक्स्ट्रा और एक्स्ट्राऑर्डिनरी थिंग्स विल बी अलाउड इन दैट बुक। ओके, तो तुमने तीसरी बार NCERT बना ली, वो नोटबुक भी उसके साथ ही साथ बना ली। अब तुम्हारा काम हो गया, वो चैप्टर हो गया है। Okay, now get ready for the test. Make sure you have joined any online test or the offline. If you are in offline coaching, तुम्हारी टेस्ट तो होती होंगी, तो टेस्ट दो। वो चैप्टर उठाओ जो टेस्ट में आने वाला है, उन चैप्टर्स से स्टार्ट करो। तुम जो पीछे रह जाएंगे चैप्टर्स, वो तुम फ्री डेज में करते जाओ, ठीक है। एक चैप्टर को तुम 3 दिन दे रहे हो या फिर 4 दिन दे रहे हो, तो टोटल एक वीक में 7 दिन होते हैं। तो तुम्हें एक चैप्टर को 3 दिन देने हैं, बड़ा चैप्टर है तो बाकी के 4 दिन तुम्हें उस चैप्टर को दे देने हैं। अगर तुम्हारे पास एक्स्ट्रा टाइम बचना है तो 4th दिन को या फिर 5th दिन को, जो भी तुम्हारा रिस्पेक्टिव डे बनेगा, उस टाइम पे तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। वापस वही करनी है, कोई नई प्रैक्टिस नहीं करनी है। वही क्वेश्चन जो तुमने देख के करे थे टेस्ट के फॉर्म में ये लगा सकते हो। ओके, इफ समथिंग यू हैव टू डू एक्स्ट्राऑर्डिनरी, मेक श्योर अगर तुम ये चीज़ कर रहे हो तो ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि फिर आगे तुम्हारा ब्रेन बहुत अच्छे से पकड़ लेगा इस चीज़ों को, तो तुम्हें कोई डर नहीं लगेगा आगे आने वाले टेस्ट से। मेक श्योर अगर ये तुम कर रहे हो देन इट इज़ वेरी वेल एंड गुड। ओके, अब एकेडमिक स्ट्रैटेजी हो गई, पोर्शन वगैरह, रिविजन स्ट्रैटेजी हो गई। नाउ कमिंग ऑन टू द फाइनल एंड मेन थिंग दैट हाउ यू शुड प्लान दिस, दैट इज़ द मैथमेटिक्स स्ट्रैटेजी। सो मैं प्रैक्टिकली बात करूँ तो मेरे पास है अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इतने महीनों में तुम्हें पूरा एक बार करके लेना है। 3 दिन दे के पर चैप्टर या 4 दिन दे के पर चैप्टर। अगर मैं सोच रही हूँ कि तुम 3 दिन दोगे तो फिर वेरी वेल एंड गुड। अगर तुम्हें प्रॉपर हो, लेक्चर नहीं देखने की ज़रूरत है, वेरी गुड, तुम 3 दिन में एक चैप्टर कंप्लीट कर सकते हो। पहले दिन तुम NCERT खुद से पढ़ लो क्योंकि तुम्हें आता होगा, ठीक है। अगर नहीं आता है तो 1 शॉट देख के कर लो। NCERT पढ़नी इज़ ज़रूरी, लेक्चर देखो या ना देखो, NCERT रीडिंग दैट इज़ ज़रूरी। नेक्स्ट डे तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे देख देख के, और तीसरी दिन नोटबुक में तुम देखोगे, बनाओगे, NCERT से नोटबुक बनाओगे, 1 पेज 1 चैप्टर। ओके, ये चीज़ तुम्हारी हो चुकी है। 3 बार तुमने NCERT कर लिया अच्छे से, तो मैं मान के चल रही हूँ 3 दिन में तुमने एक चैप्टर कंप्लीट कर लिया। नो वरीज फॉर द पीपल हु आर गोइंग टू डू इन 4 days, यू हैव मेनी डेज लेफ्ट। लिसन टू द स्ट्रैटेजी, आई हैव टेकन द मिनिमम डेज। ओके, तो मैंने इन 5 महीनों को पकड़ा, मैंने 30 दिन पकड़े क्योंकि 30 आर द मिनिमम डेज बेचारे ईच एंड एवरी मंथ। 30 को अगर तुम मल्टीप्लाई कर रहे हो 5 से, देन यू विल गेट 150 डेज इन टोटल, राइट। मैं 2 दिन छोड़ रही हूँ वीक के, सैटरडे एंड संडे, बिकॉज सैटरडे को तुम रिविजन करोगे पूरे चीज़ का जो तुमने वीक में करी, सारे सब्जेक्ट का मैं मान के चल रही हूँ, और फिर संडे को तुम्हारी टेस्ट होगी, तो ये दिन मैंने छोड़ दिए। तो तुम्हें पूरे वीक के 5 दिन लेने हैं, जिसमें तुम 150 डेज बन रहे हैं इन 5 महीनों में, ठीक है। अब सैटरडे को बच्चा बैकलॉग भी कवर कर सकता है या फिर रिविजन भी कर सकता है, वो उसके ऊपर होगा। तो अगर मैं 150 को 3 से डिवाइड कर रही हूँ, 3 डे तुम पर चैप्टर को दे रहे हो, तो तुम्हारे पास बचता है 50।
तो 50 डेज़ है तुम्हारे पास। 50 चैप्टर्स करने का टाइम है तुम्हारे पास 150 डेज़ में, बट तुम्हारे पास तो 50 चैप्टर्स है ही नहीं, तुम्हारे पास तो कम चैप्टर्स है बायोलॉजी के। तो ये तो बहुत अच्छी बात है। कितने चैप्टर्स है तुम्हारे पास बायोलॉजी के? तो अगर मैं 11th की बात करूँ 22 चैप्टर्स है। मैंने फ्रॉग, कॉकरोच और प्लांट फैमिलीज़ को अलग अलग मान के चला है, तो 22 चैप्टर्स है, ठीक है। अगर मैं 12th की बात करूँ तो 12th में तुम्हारे पास 13 चैप्टर्स है, ओके। अगर दोनों को प्लस करें हम तो फिर तुम्हारे पास टोटल 35 चैप्टर्स है। तो तुमने 50 चैप्टर्स टाइम निकाल लिया इन 5 महीनों में, तो तुम्हें तो सिर्फ 35 करना है, तो ये अच्छा है ना। तो 50 माइनस अगर 35 करोगे तुम लोग, तुम्हारे पास 15 दिन एक्स्ट्रा मिल रहे हैं। सैटरडे संडे को छोड़ के भी तुम्हारे पास एक्स्ट्रा मिल रहे हैं। तो जो चैप्टर्स तुम्हें बड़े लगते हैं उनको तुम एक एक या दो दो दिन ऐड करके चलो। सो अगर तुम्हारे पास 35 में से कोई 10 चैप्टर्स भी हार्ड है और तुम्हारे पास 15 डेज़ एक्स्ट्रा है, तो फिर तुम हर एक हार्ड चैप्टर को, जो 10 हार्ड चैप्टर्स है उनको एक एक दिन दे सकते हो। तुम्हारे पास फिर भी 5 एक्स्ट्रा डेज बचते हैं, और सैटरडे संडे तो बचता ही है अगर तुम्हारा बैकलॉग कोई रह जाए तो तुम ऐड कर सकते हो। किसी चैप्टर को 2 दिन दे दो एक्स्ट्रा, किसी चैप्टर को एक ही दिन में कंप्लीट कर लो, जैसे बायोटेक वाली यूनिट हो गई, या फिर एवोल्यूशन वाली यूनिट को तुम 2 दिन दे देना, जेनेटिक्स जैसे चैप्टर्स को तुम 5 दिन दे देना। दैट्स कम्प्लीटली अप टू यू, ओके। बट ट्रस्ट मी, अगर तुम ये प्लान फॉलो करते हो तो दिसंबर तक तुम्हारा एक पार्ट का सिलेबस कहीं नहीं जा रहा, वो कंप्लीट हो जा रहा है। अब टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट मंथ्स, ओके, दैट इज जनवरी, फरवरी, मार्च एंड अप्रैल। तो अगर मैं जैन और फेब की बात करूँ तो फिर जैन और फेब में तुम्हारा दूसरा रिवीजन स्टार्ट कर देना है। पर चैप्टर को 2 दिन दे दो। पहले दिन एनसीईआरटी कर लो, 3 घंटे देना पहले दिन एनसीईआरटी को, 3 घंटे। हर एक पेज को तुम 10-10 मिनट का टाइमर लगा के पढ़ोगे, एक बार 2 बार रट्टा मार लो, 10 मिनट एक पेज, 10 मिनट दूसरा पेज, अगले 10 मिनट वापस वही 2 पेज, ऐसे करके पर चैप्टर करते जाना पर दिन। तो तुम्हारा 3 घंटा लगेगा एक चैप्टर को हार्डली, तो ये कंप्लीट कर लो, ठीक है। तो फर्स्ट दिन तुमने ये 3 घंटे दे दिए, सेकंड दिन तुम 2 घंटे देना, और बचा हुआ 1 घंटा किसी और सब्जेक्ट को दे देना या फिर ब्रेक ले देना। तो सेकंड डे तुम्हें क्वेश्चंस करने हैं बिना देखे टेस्ट फॉर्म में, और अगर तुम्हें देखना है तो तुम देख भी सकते हो। जो तुम्हें नहीं आ रहा है, जो तुम्हारा रॉन्ग हुआ, वो एनसीईआरटी पढ़ लो, तो 2 घंटे का काम हो जाएगा, ये ईजिली हो जाएगा। तुम कोशिश करना कि एक पूरे घंटे में तुम 100 क्वेश्चन एटलीस्ट अटेम्प्ट कर लो, ठीक है, जिसमें PYQ के क्वेश्चन होंगे और तुम्हारे मॉड्यूल के भी क्वेश्चन हो सकते हैं। तो जैन, फेब, मार्च, अप्रैल में तुम्हारे, अगर तुम 12th स्टूडेंट हो, 12th अपेयरिंग, तो तुम्हारे बोर्ड्स भी होंगे, तो तुम ईजिली कर पाओगे अगर इस प्लान को फॉलो कर रहे हो। अगर तुम ड्रॉपर है, तुम्हारे पास टाइम है, तो यू कैन ट्राई छोटे छोटे लेसन तुम एक ही डे में कंप्लीट कर रहे हो, ताकि तुम्हारा रिविजन और बार हो सके, ठीक है। ये तुम्हारा ही फ़ायदा हो जाएगा इस चीज़ में। डोंट गेट डीमोटिवेटेड 12th स्टूडेंट्स, तुम्हारा लॉस नहीं होगा, क्योंकि तुम स्कूल के बोर्ड्स के लिए प्रिपेयर करोगे तो तुम्हारा कुछ एक्स्ट्रा ही होने वाला है। डोंट गेट फील बैड और समथिंग। तो अगर बोर्ड में अपीयर करने वाले हो तो मार्च और अप्रैल में, अगेन जो जैन में फेब में किया वो कर लो। अप्रैल के सिर्फ 20 डेज ले लो, बाकी के 10 डेज छोड़ दो लास्ट के रिविजन के लिए। फॉर ड्रॉपर स्टूडेंट्स यू कैन ट्राई टू कम्प्लीट मार्च में एक बार वापस से, और अप्रैल में एक बार वापस से फर्स्ट 20 डेज में। तो 12th वाले स्टूडेंट्स का वो 2 बार हो जाएगा, क्योंकि वो स्कूल के लिए भी करेंगे और नीट के लिए भी करेंगे। ड्रॉपर्स का भी 2 बार हो जाएगा, एक मार्च में और अप्रैल के स्टार्टिंग 20 डेज में। तो बाकी के फिर तुम्हें बचेंगे लास्ट के 10 डेज ऑफ अप्रैल विद सम डेज ऑफ मे। तो सपोज तुम्हारे पास 4 डेज है मे के, तो 2 तो तुम छोड़ लो लास्ट रिविजन के लिए, और ये वाले 2 भी तुम पेशेंस गंवाने में या फिर तुम्हारे पैनिक्स में ये तुम गंवा दोगे। नहीं गंवाए, वेरी गुड, अपने आप पे कंट्रोल किया, वेरी गुड, तुम बहुत आगे निकल जाओगे। तो आई वुड सजेस्ट पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है, बट ये नेचुरल है, होता है सबके साथ, तो पैनिक तो होता है थोड़ा सा, जस्ट कम्प्लीटली ओके। तुम्हारे पास 10 दिन बचेंगे। अब इस 10 दिन में एक बार नहीं रिविजन करनी है तुम्हें, 5 दिन में तुम्हें रिविजन कर लेनी है एक बार, और बाकी के 5 दिन बचेंगे उसमें तुम 3 बार या 4 बार करने की कोशिश करो रिविजन। लास्ट 10 डेज तुम्हें अच्छे से सारे डायग्राम्स, टेबल्स या फिर समरी। द 4th थिंग एंड 5th थिंग आर दी स्मॉल चैप्टर्स लाइक प्लांट फिजियोलॉजी, जो तुम्हें हार्ड लगता है, या फिर फ्रॉग, कॉकरोच, ये या फिर प्लांट एक्स्ट्रा फैमिलीज जो ऐड हुई है, ये सारी 4th और 5th थिंग्स हैं जो छोटी छोटी चीज़ें जो तुम्हें हार्ड लगती है। मेक श्योर वो तुम्हें रिवाइज करते रहो, और फ्रॉग और कॉकरोच को तुम हल्के में ना लो, क्योंकि नीट 2025 में फ्रॉग से ही 4 क्वेश्चन आ गए थे। तो ऐसा हो सकता है कि आगे जाके किसी एक पर्टिकुलर चैप्टर को जो तुम नहीं मानते हो, जैसे टिश्यू कल्चर वगैरह, उसको अच्छे से नहीं करा है तुमने, उसी में से उठ के ज़्यादा क्वेश्चन आ जाए, जैसे एनाटॉमी, मिग्रेवो टेबल, मॉर्फो के टेबल, कुछ जो टॉपिक्स है जिसमें तुम ज़्यादा ध्यान नहीं देते हो,
तो उससे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो मेक श्योर तुम सब चीज़ें अच्छे से करो। ऐसे नहीं कि फ्रॉग और कॉकरोच बाहर किया है जो ज़्यादा नहीं आता, बट क्या पता कभी भी उस चीज़ से ज़्यादा पूछा जा सकता है, तो डू इट प्रॉपरली। या फिर जो भी तुम्हारा साइंटिस्ट का इंट्रोडक्शन है वो सारा तुम्हें अच्छे से पढ़ लेना है। बाकी चैप्टर तुम्हें नज़र के ऊपर से हटा देना है, क्योंकि तुमने बहुत बार कर लिए है पहले। ठीक है, तो 5 दिन में एक बार सारे 35 करना बहुत मामूली सी बात हो जाएगी तुम्हारे लिए, क्योंकि तुम्हारे ब्रेन ने ये सारी चीज़ें पकड़ ली होंगी, क्योंकि तुमने क्वेश्चन सॉल्व कर रखे, तुमने रीड कर रखा है, तुमने डायग्राम्स देख रखे हैं, और वो जो नोटबुक है वो भी तुमने पर डे करनी है। जैन में, फेब में एटलीस्ट तुम्हें वो जो 1 घंटा में अल्टरनेटिव बोल रही थी दूसरे सब्जेक्ट को दे दो या ब्रेक ले लो, उस टाइम में तुम इस नोटबुक को देख सकते हो। पर डे 2 चैप्टर कर लो, क्योंकि 35 पेज की नोटबुक बनेगी। ठीक है, तो उससे कर लो एक बार। या फिर एनसीईआरटी में तुमने मार्किंग्स लगाई होंगी हार्ड चीज़ों की, या जो तुम्हें वापस देखनी पड़ती है वो कर लो एक बार। ठीक है, अब बचते लास्ट को 5 दिन। तो 5 दिन में मैंने कहा 4 बार रिविजन कर लो। कैसे करनी है, उसको पलटना, पेज को देखना, पलटना है, देखना, बस ऊपर से पर पेज तुम्हें 3 मिनट लगने चाहिए, तो जल्दी देख लो। तो इन 5 दिन में तुम्हें 3 बार या 4 बार कर ही लेना है। फिर बाकी के बचेंगे तुम्हारे पास 4 दिन, जो 2 दिन तुम पेशेंस में गवाओगे, और जो 2 दिन तुम्हें रिविजन करनी ही पड़ेगी। तो अगर ये 2 दिन तुम पेशेंस में नहीं गवा रहे हो, आई वाज जस्ट एक्सैजरेटिंग ऑफ कोर्स, तुम कुछ ना कुछ तो पढ़ोगे, तुम फिजिक्स के फॉर्मूलाज करोगे या कुछ, तो मेक श्योर कि तुम बायो देख रहे हो बस एक बार। ठीक है, वो नोटबुक या फिर वो मार्क्ड एनसीईआरटी की लाइन्स बस देख लो तुम एक बार, इट्स इनफ। देन लास्ट के 2 डेज होंगे, वहाँ पे तो फाइनल रिविजन होगा। ठीक है, सो अगर तुमने ये चीज़ें फॉलो की तो इस प्लान के अकॉर्डिंग तुम्हारा रिवीजन अब से लेके एग्ज़ाम, नीट एग्ज़ाम 2026 तक टिल 7 बार हो चुका होगा। यस, तुम्हारा रिवीजन 7 बार हो चुका होगा। बट मेन बात कहाँ पे आती है, जहाँ पे आधे स्टूडेंट्स स्मार्ट वर्क कर लेते हैं, वो है लास्ट के अप्रैल का टाइम। ठीक है, वहाँ पे आधे बच्चे पहले से ही शुरू में देखना चालू कर देते हैं, रोज़ रिवाइज करते हैं, बंडल में चैप्टर्स, जैसे कि 5 चैप्टर्स वो देख रहे हैं रोज़ या 6 देख रहे हैं लास्ट के 10 दिनों में, तो उनका रिविजन मल्टीपल टाइम्स होता रहता है। जैसे इस प्लान के अकॉर्डिंग 6 से 7 बार हो रहा है, उस प्लान के अकॉर्डिंग, उनके प्लान के अकॉर्डिंग उन लास्ट दिनों में उनका हल्का सा ज़्यादा हो जाता है, 9-10 बार हो जाता है। तो ये चीज़ तुम कर सकते हो, बट इट इज़ कम्प्लीटली अकॉर्डिंग टू यू। अगर तुम धीरे करो तो मेक श्योर अच्छे से करो, अगर तुम फास्ट करो तो मेक श्योर तुम ज़्यादा टाइम करो। बट आई विल टेल यू ऑल कि जो तुमने मार्क किया है, जो तुम भूलते हो, वो अच्छे से ही करना है तुम्हें। सो या, अब तुमने सारा रिविजन कर लिया, गो अपियर फॉर योर नीट 2026 एग्जाम एंड मेक श्योर दैट यू आर राइटिंग द पेपर विद अ पॉजिटिव माइंड, स्टे काम. That's it for today. I have already motivated you guys so early. I can assure you all that इस प्लान को फॉलो करने से 101% तुम्हारे बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे, तुम्हारा बहुत अच्छा जाएगा पेपर, बिकॉज यू हैव रेड एनसीईआरटी। ये कोई मेरा पर्सनल चीज़ नहीं है, मैंने पर्सनली फॉलो किया है, बट कोई मेरा पर्सनल फ़ायदा नहीं है, तुम लोग का फ़ायदा है। तो तुम्हारा बहुत अच्छा जाएगा नीट 2026 का पेपर, और ट्रस्ट मी, मेरे भी इससे करने से नीट 2025 में 300 आ गया है मार्क्स। तो सोचो, नीट 2025 जैसे पेपर में इतना लाना भी बहुत था, एंड इस प्लान को फॉलो करके तुम्हारे सच में बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे, ट्रस्ट मी। और अगर तुम्हें मोटिवेटेड कभी कम लगे तो फिर मेक श्योर टू डाउनलोड दिस वीडियो, इस वीडियो को देखना। और जान के बाद तो तुम्हारा सोशल मीडिया बहुत कम होना चाहिए। दैट वुड बी अ टिप फ्रॉम माय साइड टू यू ऑल प्रिपेयरिंग फॉर नीट 2026. सो या गाइज, दैट वाज इट फॉर टुडे, एंड आई जस्ट होप you all follow this strategy and I'll make sure, it's my guarantee, अगर तुम इस चीज़ को फॉलो कर रहे हो तो तुम्हारा सिलेक्शन, एटलीस्ट बायोलॉजी के मार्क्स जो है, हार्ड पेपर आया तो भी तुम्हारे वो मार्क्स कहीं नहीं जा रहे। अगर नीट 2024 जैसा पेपर आया तो तुम्हारा 340, 350, 360 फिक्स्ड है। नीट 25 जैसा पेपर आया तो 300 above is always fixed if you follow this strategy. Okay, so no worries, I'm sure you will excel in your NEET 2026 exam if you're appearing for it. And if you're appearing for NEET 2027, yes, you can take help from these videos. You have many more days. Okay, so yeah, make positive time of these days and make them fruitful in your studies. So yeah, that's it for today, and if you have any doubts or queries, make sure to comment and ask, or you can also ask on my Telegram channel, and you can also go there and see NCERT fingertips couple chapter from my Telegram channel. Link will be given in the description, so make sure to join it. Also make sure to watch the upcoming videos on the chemistry strategy on each and every subject of it, and also the physics strategy, which is upcoming next week. Thank you for watching, and that's all for today. Lots of love. Bye bye.
So you came home from the coaching, you read the NCRT. The next step would be coaching. So the next step would be question practice.